Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is going to be a very special one as this is the retirement day of my mother-in-law. So right now we are heading towards her bank, which is Central Bank of India. Let's go and watch how it goes. So today, since it's a retirement day, we all are here. Mom, how are you feeling? It's your retirement day. I'm feeling great. I'm feeling freedom. No more getting up in the morning and running to the office and doing the whole day work and then coming back tired and looking after the family. Then again the next morning the same routine for the last 35 years. Now it's come to a standstill and I'm going to enjoy my life, my hobbies, my like traveling and sleeping. Yes. And looking forward for our new home and our grandchildren's and great grandchildren's and our son's marriage. Everything. And everything this office, this bank has given me. I'm thankful to everybody, all my family and my staff, my colleagues who are like a second family to me. Thank you all with folded hands. Okay, don't get emotional. No, I'm not getting emotional. I'm remembering all my lovely 34 years, 6 months in this institution. Thank you everybody. God bless you. Stay happy, stay blessed and stay safe. That was her seat. Indeed it is. Since she is not yet retired, the day is on. That's her office. हेलो मम्मा दूध, कैसा लग रहा है आपको? आपकी बेटी रिटायर हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। So Papa, I would like to say that you are looking really superb in this color. So you have specially okay. Then how are you feeling that mom is getting retired? And most important thing is that I will get full-time housewife. Okay. Then, secondly, kids also get full-time mom. एक दूसरे के साथ टाइम भी बिताएंगे। पहले कभी हम लोग जब भी ये फंक्शन होता था कहीं हमारे जगह उसमें जाने की नहीं होता। Right. Since you both were government. मैच नहीं। अब वो भी फ्री होने से हम कभी भी किसी यहाँ जा सकते हैं। Enjoy Very true. जहाँ घूमने जाना वहाँ जा सकते हैं। इवन इफ शी फेल सिक तो उसको भी मैं अटेंड कर सकता। अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे भी वो अटेंड कर सकते। Very true. इतने सालों बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी अब आप दोनों को। So how are you feeling, Akshay? Your mother is getting retired. Okay. What do you mean? You never used to get food when she was working. Mom cooked food. Anyway, she always used to cook. But still, what are you feeling about the retirement of your mother-in-law? Well, I am really very happy. At the same time, I feel sad because every morning I used to see her getting ready, like getting the final and coming to office. I'll miss that, but definitely we are going to get good home cooked food, and she really makes very tasty food. So every day we are going to eat. Okay, I'll also make. I also cook, but yes, I love her handmade. So we'll get that, and we will have her presents all the time. So it's good. How are you feeling? Your mom is getting retired. Finally, Mummy is getting home. Finally, for good. Homecoming. Heard a lot that जब से अक्षय पैदा हुआ है तब से आप मॉम को जानती हैं। When you came to our marriage, बहुत टाइम हो गया आप मॉम को जानती हैं, and mom is getting retired. So how you feel? We want to know your feelings. I feel very sad because I joined with her and now she's retiring and I'm in the same branch. So feeling sad of course, but yeah, she's suffered a lot during the working, too much of tensions. Now she is free from all that. I'm happy.
happy for that. I hope she has a very peaceful and retired life, enjoying healthy because. So we have ma'am who belongs to Loreto School where mom was also there, and they are working together as well. So I would like to ask auntie, how are you feeling that mom is getting retired in front of you? Well, ma'am has been a really good branch manager, and more than a branch manager, she is a wonderful person. She has a wonderful personality, and she has a wonderful personality. And I think this 1 year that we have spent with ma'am, I think it has just passed off so quickly. This 1 year has passed off so quickly that I mean, it will remain in my memories. And moreover, we are from the same school. That I came to know when ma'am came to this branch. I came to know that time that we are from the same school. So it is a long association also. Yes. And she is a lovely person. I can say that she is a very gentle and lovely person and good human being. How are you feeling that mom is getting retired today and you have spent time with her? So share some good moments with her. Obviously we are feeling very 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 sad. In the other way we are happy also कि अब वो अपना enjoy करेंगी, अपने फैमिली को टाइम देंगी. जैसा वो बता रही कि हर एक कोना मुझे खोज रहा है. हाँ, she says that, right? कि मैम अब वो टाइम दे सकती हैं बच्चों के साथ. जो मोमेंट उन्होंने मिस किया होगा अब वो स्पेंड कर सकती है. आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. और वो जहाँ भी जाएंगी आई नो कि वो उनके हमेशा अच्छे फ्रेंड और ये, क्योंकि वो शी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट. She's very caring. मतलब और वो अपने दिल में कभी कोई बात नहीं रखती. कभी डांटना होता है तो वो बच्चों जैसा हमें डांट देती है. उसके बाद फिर पैम्पर भी कर लेती है कि कोई बात नहीं, ज़्यादा डांट दिया ऐसा उनका डांटना हमें ऐसा भी लगता है मैम कि खराब भी नहीं लगता है कि चलो ठीक है मैम बोल रही है तो हो सकता है उनके पास मतलब प्रेशर होता है ना कि अथॉरिटी का प्रेशर होता है कि हाँ कुछ भी होगा तभी मैम बोल रही है. लेकिन हाँ फिर ठीक है कि ज़्यादा तो मैम हमेशा ये बोलते हैं ज़्यादा तो नहीं डांट दिया ना. बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ज़्यादा. मतलब कभी भी उनके सामने कुछ प्रॉब्लम लेके जाओ तो वो समझ जाती है. हमें हेजिटेशन नहीं होता था कि हाँ मैम के चाहिए कुछ भी प्रॉब्लम होती. लेकिन मैम के साथ ना मतलब मैं जोनल ऑफिस आई थी तो मुझे एक साइड में वो सागर सर ने ये बोला था अरे स्मृति मैम है ना तुम चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो मतलब ये जो है ना मतलब मैम का कैरेक्टर ऑलमोस्ट सबको ही जानते हैं. हाँ इवन जोनल ऑफिस फन लविंग है मैम और मदरली फीलिंग जो होता है ना वो है कि चलो पता है कि मैम के पास भी. हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज मॉम रिटायर कर रही है आपके बैंक से, तो आपको कैसा फील? मेरा टेन्योर जो इनके साथ में रहा 9 महीने का बहुत ही अच्छा रहा. काफ़ी चीज़ें ये मेरे साथ डिस्कस करती थी, मैं इनके साथ डिस्कस करता. इन्होंने कभी यही नहीं समझा कि ये एक ऑडिटर है, ये यही मान के चलती रही हमेशा कि हमारे ही स्टाफ हैं. और कई तरह के गाइडेंस तो बहुत अच्छा हमारा साथ रहा. और आज मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है जब कोई जाता है तो, लेकिन खुशी भी इस बात की कि इनकी रिटायर्ड लाइफ अपनी लाइफ ये भी अपने लिए अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकेंगे. ये नहीं कि छुट्टी में घर में बैठे हैं और पीछे से फ़ोन आ गया कि भाई फ़ोन कॉल आ रही है, परेशान कर रहे हैं, दिमाग में टेंशन चल रही है. कि कम से कम फैमिली के साथ है तो फैमिली को वक्त दे सकेंगे. तो मेरा वाकई में शुभकामनाएं देना चाहूँगा इनकी रिटायर्ड लाइफ के लिए. थैंक्स अ लॉट. कुछ और आप पूछना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. मेरा नाम संदीप कुमार है. और मेरे को जब से मैडम आई हैं बहुत ही बढ़िया लगा. यानी अपने घर जैसा माहौल. आपको कैसा लग रहा है आज मॉम रिटायर कर रही है? आज धन्यवाद. मगर मैडम के जो प्रीतम साथ में 1 साल 2 महीने जो रहे हैं बहुत अच्छे बीते. बहुत से आते जाते हैं मगर उसी तरीके से जैसे मैडम ने बताया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं. वेरी नाइस. बहुत ज़्यादा बड़े प्यार से समझाते हैं बच्चों की तरह. नहीं ऐसे नहीं, ऐसे गुस्सा भी नहीं करती कभी. मन तो अंदर से हो ही रहा है. जो भी कहना होता है बिल्कुल सामने कह देंगे. पहले छोटा हो बड़ा हो जो भी हो सामने. और बिल्कुल फ्रैंकली बात करती है. बिल्कुल फ्रैंकली. बहुत अच्छे नेचर की. भगवान ऐसी माँ ऐसी सास सबको. बाकी वेरी गुड लकी. बहुत बहुत ज़्यादा लकी. स्मृति
एंड जो आपकी चीफ मैनेजर है बैंक की इस ब्रांच की, वो आज रिटायर हो रही, तो आपको कैसा लगा? आप रोज सुबह उन्हें वेलकम करते होंगे कि आइए मैडम, तो कल से वो नहीं आएंगी, तो आपको कैसा लगा? साथ में आदमी रहते हैं तो साथ में तो थोड़ा बुरा तो लगता है, पूरा भी थोड़ा ऐसे कि कब से मिलेंगे नहीं, कब मिलेंगे, कहाँ मैडम फोन से बात करके बातचीत जरूर होगी और आप उनके साथ ज़रूर कांटेक्ट बनाए रखेंगे। थैंक यू। तो अंकल आप ये बताइए हमें कि आप यहाँ पे मॉम के साथ कब से जुड़े हुए हैं, आप मॉम के लिए क्या करते हैं, और आज जब मॉम रिटायर करती है तो आपको कैसा लगा? मैंने तो आप कहना मेरे लिए मेरे को बेटा जैसा समझती थी, ठीक है। उनके साथ जाने के बाद नहीं इमोशनल नहीं होना है प्लीज़। आप उनके साथ कैसे रहते थे, क्या करते थे? हम तो 1 साल में मैडम, मैं PM हूँ, मेरा नाम सुनील कुमार है, ठीक है मैडम, बहुत अच्छी मेरी सीट ग्रहण करें कल से। और जिस तरह से ब्रांच समझी थी और जिस तरह से ब्रांच ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया था रिटेल में और कासा में, वैसे बिलवा जी आपको पूरा सहयोग देंगे, आप चिंता मत करना, आपको मेरी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे। और ही इज़ अ वेरी गुड वर्कर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो आप भी सब लोग इसका सहयोग जरूर करिए और हमारी ब्रांच का नाम टॉप 10 में तो कम से कम रखिए। थैंक यू। चलो हैप्पी रिटायरमेंट डे। होने नहीं दे रहे। Happy retirement to you. Happy retirement to you. Happy retirement to you. Happy retirement to you. आपको आपके बैंक में करना लाइफ सबके साथ है। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को इस अवसर पर काम किया, ज्वाइन की सेंट्रल बैंक में एज ए प्रोबेशन ऑफिसर, और आज तक 34.5 साल उन्होंने निकाला और इस कार्यकाल में कोई दाग नहीं और सब कुछ ठीक हो गया। ये एक उनके लिए और हमारे लिए भी एक अभिमान वाली बात है। और ये तभी पॉसिबल है जैसे आप जैसे लोग जो हैं अगर सहयोग नहीं देते, सरकारें नहीं करते, तो ये पड़ाव जो है पार करना बहुत मुश्किल है। तो आप इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मैडम को बड़े अच्छे से रखा है और घर में मुझे कोई क्लेश नहीं हुआ, नहीं तो ऑफिस की बात। खुश हैं, इनको फुल टाइम
बच्चों को भी फुल टाइम माँ मिल गई है, तो सारे सब खुश। धन्यवाद। ये चीज़ बहुत लोगों को पता, बहुत क्यूरियोसिटी होती है लोगों को कि अगर आप इतने टाइम आप ऑफिस में रहते हो तो घर में लोग कैसे रहते होंगे। वही मेरी मम्मी भी ऐसी होती था, मुझे भी लगता था कि ऑफिस में मम्मी कैसे रहती होगी, घर में कैसे रहती। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। मैं और मेरा भाई बचपन में जब ऐसे थे तो एक नेहरू प्लेस में ब्रांच है सेंट्रल बैंक की, तो वहाँ पे हम छोटे से जाते थे। अभी भी एक ऐसी चेन लगी होती थी, तब तो हम सीधे सीधे निकल लेते थे, आज झुक के जाना। तो उस तब से हम जाते रहे हैं, तो हमें ऐसे काउंटरों के ऊपर देखना और लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि जब भी हम जाते थे हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुला के कोल्ड ड्रिंक तो पिला ही देता था। तो मम्मी के ऑफिस जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पापा के ऑफिस में जाके सिर्फ पापा के रूम में होता था और शायद नोटबुक भी निकाल के होमवर्क कर रहे थे, बट यहाँ पे हमें कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा बहुत समोसे वगैरह जरूर मिल जाते। जब भी अब जब शाम होती थी, जब हमारे घर से अगर आप देखें तो बालकनी से एक रास्ता जाता और वहाँ से रास्ते में चलते चलते मम्मी आती थी। तो जब भी मम्मी आती थी शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, तो दूर से ही ऐसे ही हाथ करती थी, तो उनको खुशी होती थी बहुत घर पे आते हैं। तो वो खुशी बचपन से अभी तक बरकरार ही है। आज भी उन्होंने जब गए तो बात जाते जाते एक बार मुड़ के जरूर देखती थी ऑफिस, और जब भी आती थी तो साथ में, आज तो साथ में लेके जा रहे, पर आती थी तो हम गैलरी में वेट करते रहते। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हमें कोई पढ़ाई में मुश्किल आई। और सबसे बढ़िया बात तो कि हमें लगता है कि ज़िंदगी का सारा अच्छा खाना जितना खाया और रेस्टोरेंट में, वो माँ के खाने के सामने फीका। ट्रू। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि मम्मी ऑफिस जाती थी और आती थी। हमारे लिए एक गर्व भी होता था जब मम्मी प्रमोशन होती थी, इतने साल इतने अलग अलग ब्रांचेज में इतने लोगों के साथ डील करना और ये सारी बातें बनाना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक कहावत है यूट्यूब पे पढ़ेगा, मुनावर राना जी हैं, वो बहुत ही अच्छी बात लिखते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं तो बड़ी से बड़ी ऊंचाई छुई है हमने, बड़े से बड़े मुकाम को हमने पाया, लेकिन जब माँ ने अपनी गोद में उठाया हमने आसमान कभी हुआ। वाह वाह वाह। मैं कहूँगा अपने बड़े भैया से कुछ। गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरी मॉम मेरे पैदा होने से पहले ऑफिस में नौकरी लग गई। तो मुझे याद है कि मेरी नानी बताती थी कि जब वो मुझे ट्रॉली में लेकर घूमने जाती थी शाम को, तब मेरी मॉम आती थी शाम को रात से काम करके। तब तो मुझे समझ नहीं होती थी कि मॉम आ रही है या जा रही है। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे संजय ने बताया, शाम को मम्मी का घर पे आना तो बहुत खुशी वाली बात है। वो अलग बात है कि उनकी मम्मी कुछ लेकर आती थी, उसकी खुशी अलग होती। मम्मी को घर आते हुए देखना वो एक अलग खुशी होती है। आज के बाद वो खुशी हमेशा रहती है हमारे पास, मम्मी करते रहती है। मेरी मॉम से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, स्पेशली वर्क एथिक्स। मॉम ने अपने काम के लिए, ब्रांच के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। 10th और 9th क्लास में जो बहुत क्रूशियल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जिसमें मॉम ने बताया कि उनके जो स्टाफ है छुट्टी ले लेके अपनी प्रिपरेशन ले बैठे थे। उस टाइम में मॉम की ट्रांसफ़र हो गई थी। उस टाइम पे हमने अकेले पढ़ाई करी है, हमारे पिताजी ने हमें अकेले संभाला है, पर मॉम ने अपना पूरा जो जॉब है उसको एबिलिटी से संभाला है। जब भी वो ऑफिस में आती थी और हम जब जाते थे और जिस तरह से सब लोग उनको फेस करते थे, तो वो देख के हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि हम भी बड़े होकर कुछ ऐसे बड़े ऑफिसर बने, जब हम ऑफिस में जाए तो हमें भी 10 लोग ऐसे सलाम देंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि अब हम घर में रहेगी, साथ में उनको अब हम एटलीस्ट इतने बड़े हो गए कि उनको घर के भी काम कुछ ज़्यादा नहीं करने देंगे, बस आराम से उनको रिटायरमेंट की लाइफ एंजॉय करने देंगे। आपने जितना साथ दिया, आपकी ब्रांच हमेशा यादगार होती है। हालांकि इतनी ब्रांचेस में मॉम हुई हैं, पर फिर भी आप के जो लोग होते हैं उन्होंने काफ़ी यादगार बनाया आज का दिन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। Started this very special day for mom. It's a retirement day,
और मेरे को तो मेरे ऑफिस आते हैं, जैसे मैं पहले फंक्शन ब्रांच में जब थी तब भी मैंने देखा, आई रियली फील प्राउड जब मैं देखती हूँ माय मदर इन लॉ एज अ चीफ मैनेजर। जब मैं ये बोलती भी हूँ किसी को तो आई फील रियली प्राउड। सो रोज सुबह उनको रेडी होते हुए देखना एंड उनकी साड़ी एंड एवरीथिंग सच टिप टॉप होके ऑफिस आना प्रॉपर यू नो, तो वो देखना ही आइज की एक डिलाइट था मेरे लिए सिंस 2 years। सो आई मिस दैट थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली वो और अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनेंगी, अब तो फॉरेन ट्रिप्स करेंगी, बट आई रियली विश शी डज दैट एंड रियली ऑल द बेस्ट मॉम एंड यू आर रियली एन इंस्पिरेशन। मेरे सारे कोलीग्स, फ्रेंड्स, मैं कहूँगी ये मेरा दूसरा घर है। हम घर में कम समय रहते हैं, ऑफिस में हम लोग ज़्यादा समय हैं। मेरे लिए ये पूरा सेंट्रल बैंक एक तरह से दूसरा परिवार ही था, जो हम लोग दुख सुख सब बांटते थे और काम करते थे, मिलजुल के ही काम किया। हालांकि मैं इस ब्रांच में ज़्यादा दिन नहीं रही, 14 महीने रही, लेकिन यादगार रहेगी ये ब्रांच, क्योंकि मुझे पहले दिन ही जब आई तो मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ मिला। और शर्मा जी का मैं सहयोग इसलिए बहुत आदरणीय मानूंगी क्योंकि इन्होंने मुझे हर पहलू में साथ दिया, क्योंकि हमें ब्रांच चलानी थी, बहुत कम स्टाफ था, आए दिन स्टाफ कम रहता है इस ब्रांच में। लेकिन तभी भी हम लोगों ने, मेरे टेन्योर में हम लोगों ने अचीवमेंट्स करी हैं, कासा में करी हैं, एडवांसेस में करी है, रिटेल में करी है। एनपीए भी हमारा किसी तरह से कम हुआ, जब वो अकाउंट चला गया इसलिए कम हुआ, लेकिन इट वॉज अ गुड ब्रांच। मेरी 34 साल की नौकरी है, 86 में मैं लगी थी। तब कभी सोचा नहीं था बैंक में, कभी मुझे डेबिट क्रेडिट तक भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के सहयोग में रह के, और आज जैसे 3-4 दिन से लोगों के पूरे इंडिया भर से फ़ोन आ रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ कुछ ही महीने या साल काम किया होगा, उन सबका सहयोग के साथ मैं आज इस मुकाम में पहुंची हूँ। मैं उन सबका शुक्रिया भी करूँगी, और मुझे इस बैंक ने बहुत कुछ दिया। मैंने जब ज्वाइन किया था तब हमारी शादी नहीं हुई थी, बैंक के होते होते ही शायद हमें अरुण जी मिले, जो भगवान ने 2 अच्छे बच्चे दिए। लता ने मेरा साथ पूरा 34 साल दिया। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था लता मेरे सामने थी, और आज मैं जा रही हूँ तब भी लता मेरे सामने। लेकिन मेरी जो ये जर्नी थी सेंट्रल बैंक में काफ़ी लंबी थी, देखा जाए तो मैंने करीब 18 से 20 ब्रांचों में काम करा है 34 साल में। 3-4 ब्रांचें मैंने अपग्रेड करी हैं, और ऐसा कोई काम नहीं है जिसका वजह से मेरे को बैंक में किसी चीज़ के लिए वो करा गया। हर से जगह एप्रिसिएशन दी गई, GM ने, RM, सेंट्रल ऑफिस तक से लेटर आए हुए थे। लेकिन मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया ही बोलूँगी कि जो बैंक ने आज हमें जो दिया है वो सब बैंक की वजह से है। और जिस तरह से बच्चों ने कहा कि माँ आती थी तब हम देखते थे, लेकिन हम जब बैंक के अंदर होते थे कभी हम माँ के अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते थे, और वैसे ही जब हम घर जाते थे तो हम बैंक के बारे में नहीं सोचते। तो मैं ये चाहूँगी ये जो नए बच्चे हैं ये इस तरह से अपने परिवार और अपने घर का तालमेल बना के रखें और हमसे भी ऊँची हाइट्स पे हो। और इसलिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो आप लोगों ने मेरा जो सफ़र यहाँ तक अच्छा अंतिम क्षण जो मेरे बैंक के साथ रहने वाले हैं आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है, और सबकी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों को So if you have got recently retired, do share your experience in the comment section below.
And if you liked my video, don't forget to hit like and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, take care of yourself. ढेर सारा प्यार. Bye bye.